Students, welcome once again to the Aggarwal Academy of Education. In today's video, we are going to discuss here with ICSE class 8 mathematics. Book is your again Foundation Mathematics by Professor R.S. Aggarwal, right? Chapter is chapter 6, that is percentage, right? So what does percentage mean? Percentage mean per hundreds, right? So बच्चों, इसमें आपने हमारा जो 7th ICSE क्लास 7th का जो वीडियो है उसमें काफ़ी वास्ट जो है परसेंटेज के ऊपर हमने काम किया था। तो अगर आपको ज़्यादा डीपली उसको सीखना है तो उसमें जा सकते हैं आप ICSE क्लास 7th के वीडियो में, राइट। तो इसमें जो है आपने ध्यान रखना है कि वी हैव टू पुट परसेंट और रिमूव परसेंट, या तो हमने परसेंट लगाना है या हटाना है, राइट। तो लगाने के लिए हम हमेशा वी हैव टू मल्टीप्लाई और हटाने के लिए हमेशा वी हैव टू डिवाइड विद 100। यहाँ पे डिवाइड विद 100, ये दो चीज़ें आपने यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो परसेंटेज चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सो एक्सरसाइज इज योर एक्सरसाइज 6A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन, राइट। So we have to convert it into these 4 parts into fraction, right? So I am going to solve it here. Solution first, part first. So part first is 68%. So here it is percent. That means we have to remove that percent and convert into 100, right? ना सॉरी फ्रैक्शन। सो इसके लिए हमने जब भी हमने रिमूव करना है तो हम पता है हमें कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100। सो इसको लोएस्ट टर्म में ले आएंगे, 4 पे डिवाइड हो जाएगा, 4 17 या 425। तो इससे ज़्यादा हम इसको लोएस्ट टर्म में नहीं ले जा सकते। सो दिस वुड बी आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट इज सेकेंड 1/3%। तो ये कम्प्लेक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल में ले आएंगे हम। 3 या 9 + 1 10/3%, राइट। सो उसके बाद we have to remove the percent to 3 multiplied 100. So this 0 cancels with this. Answer would be 1/30, right students? So part third is 224%. So again we have to remove this percent. 224/100। सो इसको हम लोएस्ट टर्म में ले आएंगे तो 4 पे 4 5 या 24, 6 या 24, 420। सो दिस वुड कम आउट टू बी 56/25। इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं हम। 25 2 या 50 + 6। जब इसको
हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो उसके बाद जो है परसेंट का निशान हटा देना है। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन पार्ट 4 इज 0.05%. So it is carrying two places. For removing percent, we have to 5 1 ja, 5 20 ja. So this would come out is 1/2000. Right, students. Next is question number 2. Solution of question number 2 part is first. So convert each of the following into percent. तो परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब हमें परसेंट से 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो किसको कन्वर्ट करना है हमने 2/15 2/15. So we have to multiply it with 100 as I have told you earlier. So 5 3 ja, 5 20 ja, 22 ja 40/3, 13 3 ja 39 plus 1. So अब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो दैट मीन्स इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू परसेंट। सो परसेंट से आपने इसको परसेंट लगा देना है इसमें। सेकेंड इज 9/40. So for converting into decimal we have to multiply it with 100. 45/2. So 22 2 ja 44 plus 1 5. Right, percent. Third one is this 2/3. 2/3 into 100. 200/3. When we will convert it into mixed fraction, it will become 3 6 ja 18, 2 remaining. Right, students. So this was third. This is part 4. Converted into simple fraction. 5 2 ja 10 plus 2 12/5 multiplied 100. 5 20 ja 12 2 ja 24. So this was your part 4. Right. So this was question first and 2. I have solved it here. Now we will move on to the question number 3rd. Now we have to rub this to make some space for next questions. So next question is question number 3rd. Express each of the following ratios as a percent. So these are ratios. I am going to solve question 3 part first. Ratio is 13:20. We can write this ratio in as a fraction. तो 13/20 फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हमने ये जो है ये सेकंड की तरह हो गया है, बस मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से।
परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 21 जा 20, 25 जा 100, तो ये कितना परसेंट बन गया? 13 5 जा 65%. राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज 11:18. So 11 upon 18 multiplied 100. Right. So 2 9 ja 250 ja. So this has become 11 5 ja 55 and 550. So this would come out to be 9 6 ja 54, 9 1 ja 9. So 549. 1 इज रिमेनिंग, एक बच गया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर. थर्ड वन इज 87:25. सो इस रेशियो को फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 प्लस 2 34. Right students. Next is 6 1/4 ratio 4 3 8. सो इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4 रेशियो 8 4 जा 32 प्लस 3 35/8. सो इसको भी फ्रैक्शन में लिखने के लिए 25/4 35/8. राइट स्टूडेंट्स. तो फिर हम आगे इसको क्या करेंगे? 25/4 मल्टीप्लाइड, ये ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा 8/35. 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 2 जा 10/7 मल्टीप्लाइड. अब इसको हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 1000/7. तो 7 से करेंगे. 7 1 जा 7, 3 30 बन गया. 7 4 जा 28, 20 बन गया. 7 2 जा 14, 6 बच गया, तो 6 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा. सो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया आपका. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. So what is this? Question number 4 is express each of the following decimals as a percent. तो ये डेसिमल है, इसको हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे. 2/10 बन गया. जब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 20%. क्वाइट सिंपल. सेकेंड पार्ट है इसका 0.06, तो ये बन गया 6/100. परसेंट लगाने के लिए 100 से करेंगे, 100 से 100 कट गया, तो ये बन गया 6%. राइट. थर्ड वन इज 0.008. तो ये 3 zeros है, तो इट विल 3 प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस हैं, सो इट विल कैरी 3 zeros विद 1 into 100. 4 2 जा 8, 5 2 जा 10. राइट. 4/5%, और इसको हम 0.8% में भी लिख सकते हैं. Fourth one is your homework. Please do it yourself. If you face any problem, then please write us in comment section. Quite easy, you can do yourself. So for making some space, I am going to rub this. So now we will move on to
क्वेश्चन नंबर 5. First, express each of the following percentage as a decimal. So 25% को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको परसेंट हटाएंगे. हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया 1/4. 1/4. तो इसको हम करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट, तो 10 डेसिमल लगाया, 4 2 ज़ा 8 बन गया, 4 5 ज़ा 20 बन गया. राइट. सो दिस इज पार्ट फर्स्ट. पार्ट सेकंड इज 4%. परसेंट को हटाना है, ये करना है, वो करना है. चाहे तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. 100 है तो 2 डेसिमल प्लेसेस 1 है आपके पास, तो दूसरा 0 लगा सकते हैं. राइट. थर्ड वन इज 1/5%. ये बन गया 5 to 15 + 1 16/5%. और इसको हटाने के लिए 4 4 ज़ा 4 25 ज़ा. राइट. तो 4/125 बन गया ये. तो इसको जब करेंगे इससे, तो 0 एक 0 लगी, दूसरी 0 लगी, तो ये 400 बन गया. तो 25 3 ज़ा 375, 25 बन गया बच के, और 250 बन गया, 125 2 ज़ा. ये पार्ट थर्ड हो गया आपका. फोर्थ पार्ट 0.3%. वैसे ही 3/100. 2 zeros are there. 3/10 into 100. तो ये बन गया 3/1000. तो 3 zeros हैं, तो ये बन गया 0.003. So this was your question number 5, students. Next we will move on to question number 6. So question number 6 is express each of the following as a ratio. Solution 6(1). So we have to convert this into ratio 48%. तो इसके लिए हमें ये परसेंट हटाना पड़ेगा. परसेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन 100 करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो 4 पे कट के 4 12 ज़ा 425. तो ये 12/25. इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है, तो दिस विल बिकम 12/20. सेकेंड वन इज 26 2/3. 26 3 ज़ा 78. सॉरी, यहाँ पे परसेंट भी लगाना है. 80/3%. 80/3 into 100. 24 ज़ा 25 ज़ा. राइट. 4/15. सो रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 4/15 बन जाएगा ये. 4/15. सो नेक्स्ट वन इज पार्ट थर्ड 0.06%. So it is carrying 2 decimals places, so 100 into 100. Right. So 6 3 2 ज़ा. सो अगर इसको आपने ऐसे नहीं भी करना है तो इसको ऐसे ही रखें. 6/10,000 हो गया ये. तो इसको हम लिख सकते हैं 6/10,000. अब ये 2 पे कट सकता है, तो 3 2 ज़ा 6, तो 5000.
तो ये हमारा, इससे ज़्यादा हम इसको जो है लोएस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। अब चलें क्वेश्चन पार्ट 4 की तरफ। 120%, सो दिस वुड 120 अपॉन 100, 2 6 जा 2 5 जा 6 upon 5, so 6:5 would be the answer. Right, students? So now we have to make some space for question 7. So question 7. So first is find question 7 is find the value of 33% of rupees 50. We have to find out 33% of 3% of rupees 50. So that means we have to remove this percent, 33 upon 100 and multiply by 50, rupees 50. तो 52 जा, this had come out to be 33 upon 2, that means half of 33, rupees 16.50, right? So second is 62 upon 3% of 3 meter, right? So this ये बन गया 6 3 जा 18 plus 2, 20 upon 3 into 100, 3 meter, because 1 meter is equal to 100 centimeter, therefore 3 meter is equal to 300 centimeter. So now we can write 300 centimeter in place of this 3 meter into 300 centimeter. इसको काट दिया हमने, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये बन गया 20 centimeter. Now we will move on to part 3rd. 0.6% of 35 kg, right? So 35 kg, so 6 upon 10 into 100, because 1 kg equal to 1000 gram, therefore 35 kg कितना हो गया, 35000 ग्राम। तो हम इन 35 की जगह 3500 ग्राम लिख सकते हैं। तो 30 से 30 कैंसिल, और यहाँ पे आ गया आपका 35 6 जा 6 5 जा 30, 6 3 जा 28 plus 3 210 ग्राम, right? So part 4 is 3/4% of 5 liter. 4 3 12 plus 1 13. So students, 4 3 12 plus 1 13 upon 4 into 100. So because 1 liter is equal to 1000 milliliter होता है, therefore 5 लीटर कितने के बराबर हो गया, 5 into 1000 5000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम 5 लीटर की जगह 5000 लिख सकते हैं। ये कट गया, 25 2 जा 2 2 जा, राइट? सो ये आ गया है बच्चों 13 5 जा
65. 13 2 जा 26 plus 6 32 upon 2. Half of 325 is 162.5 milliliter. Right? So this was your question number 7. Now we have to make space for question number 8. So I am going to write this. Solution 8 first. What percent of rupees 9 is rupees 5? So what percent of rupees 9? So जो चीज़ हमें नहीं पता बच्चों उसको मान लेना चाहिए. Let x% of rupees 9 is rupees 5. So अब सिंपल हो गया ये. So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x upon 100 into rupees 9 is equal to rupees 5. Right? Simple. So अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. सो x किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 100 5 into 100 अपॉन 9. सो ये बन गया 500 अपॉन 9. सो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45. कितने बचे, 5. राइट. Therefore 55 5 upon 9 is our answer. What percent of rupees 9 is rupees 5? Rupees 5 is 5 upon 9% of rupees 9. Therefore answer is 55 5 upon 9. So now we will move on to part second. What percent of 32 meter is 80 meter? Again let x% of 32 meter is 80 meter. बच्चों इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये यूनिट सेम होना चाहिए. अगर दोनों में डिफरेंस है, यहाँ मीटर आया यहाँ सेंटीमीटर आया, तो जो मीटर है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर. राइट, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. सो ये क्वेश्चन बन गया अब x अपॉन 100 इंटू 32 इक्वल टू 80. अगेन इसको कर देंगे हम सॉल्व. तो ये बन गया x इज़ इक्वल टू 100 इसके साथ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और 32 यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा. 16 2 जा 32, 16 5 जा 2 1 जा 2, 50 जा. So this is 250%. So 32 meter is, what percent of 32 meter is 80 meter? So 32 meter is 250% of 80 meter. So now we will move on to part third. What is part third? What percent of 50 kg is 65 kg? It is also quite simple. No need to panic in it. So let x% of 55 kg is
65 kg. सो ये बन गया x अपॉन 100 इंटू 50 kg राइट। तो वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू 65 इंटू 100 अपॉन 50। 65 टू जाए 130%, राइट। सो फोर्थ पार्ट के लिए हमें यहाँ पे जो है थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। ये लीजिए यहाँ पे बना लेते हैं हम फोर्थ। व्हाट परसेंट ऑफ 5 लीटर्स इज 400 मिलीलीटर। तो अब ये यहाँ पे लीटर आ गया, यहाँ पे मिलीलीटर आ गया। तो मिलीलीटर छोटा है तो इसलिए हम इसको मिलीलीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। लेट यहाँ पे पहले लिखेंगे बिकॉज 1 लीटर इक्वल टू 1000 milliliter, therefore 5 liter would be equal to 5000 milliliter. Now let x percent of 5000 milliliter is 400 milliliter. तो यहाँ पे मिलीलीटर यूनिट हमने सेम कर लिए हैं, राइट। सो अब इजी हो गया ये। देयरफॉर x अपॉन 100 इंटू 5000 मिलीलीटर इक्वल टू 400 मिलीलीटर। अब इसको क्रॉस कर देंगे, x किसके बराबर आ जाएगा 4000 मिलीलीटर इंटू 100 अपॉन 5000. So 20 got cancelled. 5 5 1 5 5 8. So our answer would be 8%. Right, students? Now this was your question number 8. Now we will move on to question number 9. So what is question number 9? Question number 9 is this: if 8% of a number is 24, find the number. Find the number. जो चीज़ नहीं पता उसको हम मान लेंगे। Let the number be equal to x. तो अब ये क्या क्वेश्चन बन गया? तो क्वेश्चन क्या बन गया? 8% ऑफ ए नंबर, दैट मीन्स 8% ऑफ x, देयरफॉर 8% ऑफ x इज इक्वल टू 24. सो देयरफॉर 8 अपॉन 100 ऑफ x इक्वल टू 24. तो इसको मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। So therefore x equal to 24 into 100 upon 8. 8 1 ja 8, 8 3 ja. So that number would be 300. Therefore number is equal to 300. Right, students? So question number 2. If 7.25% of a number is 2.9, find the number. So again let the number be. Therefore 7.2% 5
of x equal to 2.9 और 725 अपॉन 100 इसका आ गया, 2 डेसिमल प्लेसेस का, और 100% का आ गया 29/10। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर x कितना हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे 29 multiplied 100 into 100, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया 725 into 10, right? So this 0 got cancelled with this 5, 145, 5 2 ja 10, 29, 5 ja 5 1 ja 5, 5 20. So this would be 40. So that number would be 40, right? So now we will make some space for part third. Part third is if 16 by 3% of a number is 1, find the number. Let the number be equal to x. Therefore 62 by 3% of x equal to 1. 6 3 ja 18 plus 2, 20 upon 3 into 100 of x equal to 1. So इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा 3 into 100 upon 20, 25 ja, so that number would be 15, right? So question number 9 is solved. I am going to rub this to make some space for question number 10, right? So solution 10, part first. Increase 75 by 24%. Increase 75. So we have to increase 75 by 24%, right? So we have to find out 24% of 75. 25 3 ja 25 4 ja 4 6 ja. So this is 24% has become 18. So now therefore increase would be 75 plus 18, right? After increase the number would become 93. Quite simple. So 10 to is decrease 375 by 8%. So first we will find out 8% of 375. 25 4 ja 25 1 ja 5, right? 4 1 ja 4 2 ja. So 8% of 375 is 30, right? Now we have to increase this, decrease this, therefore decrease 375 minus 30. After decreasing it would become 345. So this was your question number 10. Now I am going to rub this to make some space for question 11. What number when increased by 15% becomes
276. सो अगेन जो चीज़ नहीं पता उसको मान लेते हैं. लेट द नंबर बी इक्वल टू एक्स. सो नाउ क्वेश्चन क्या बन गया? व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15%. नाउ therefore x when increased by 15% becomes what? 276. or x 15% of x x प्लस x ये इंक्रीज हो गया, तो ये इंक्रीज होने के बाद कितना बन गया? 276. तो 15/100 इंटू x प्लस x. 15x/100 प्लस x. 100 एलसीएम आ गया. 15x प्लस 100x. ये ऐसे हो गया. इसको 15x/100. सो इसको क्रॉस कर देंगे. x कितना रह गया? 276 इंटू 100/1115. 520 जा 523 जा 23 बन जा 4 बच गए. 46 बन गया. 23 2 जा. So that number would be 12 2 जा 240. राइट. तो उसने क्वेश्चन क्या किया है? व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15%. सो हमने क्या माना था? लेट ये नंबर क्या है? x. तो x आ गया 240. तो अब इसका आंसर क्या बन गया? 240 व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% वी विल गेट 276. राइट. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 240. सो क्वेश्चन नंबर 12 इज रिमेनिंग. तो इसको हम यहाँ कर देंगे यहाँ से. सो व्हाट नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 8%. क्वेश्चन वही है, बस इंक्रीज की जगह डिक्रीज. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. लेट द नंबर बी एक्स. सो नाउ क्या बन गया? 8. तो नंबर क्या है? x. x में से इसका 8%, x माइनस 8% ऑफ x. तो हमें मिलेगा क्या? 345. सो x माइनस 8/100 इंटू x. वी विल गेट 345. x माइनस 8x/100. 100x माइनस 8x/100. सो ये बन गया 92x/100. $345. और x बन गया 345 इंटू 100 upon 92. Right. So 52 ja 41 sorry 2 4 ja 46 2 ja right. 25 23. अब ये क्या इस पे कटता है? 23 बन जाए 23. 11 रिमेनिंग. 23 5 जा. तो 25 15 जा 375. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 375. तो इसका क्या बनेगा आंसर? व्हाट नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 8% बिकम्स 345. सो 375 इज व्हेन डिक्रीज्ड बाय 8%. It becomes 345. Right, students?
So this was all about your exercise 6a. I have solved all questions of it on your demand. So video has become longer now. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके लाइक्स शेयर और सब्सक्राइब हमारी एनर्जी है, इससे हमें एनर्जी मिलती है और हम और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ। कोशिश करेंगे कि इसकी एक्सरसाइज 6 भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दें ताकि आपको आसानी रहे। थैंक यू। It's all over from now. Wait till next video. Goodbye.